मां जी किन्ने तुहाडी बेटी ते चोरी का पर्चा करवाया? शहजाद ने। शहजाद ने। शहजाद दे घर तुहाडी बेटी कितनी देर तो काम कर रही है? 6 साल हो गए, 6-7 साल। 6-7 साल तो। ते तुहाडी बेटी किसी होर घरां विच भी काम करदी है? हाँ जी। ते शादीशुदा तुहाडी बेटी? हाँ जी। किन्ने बच्चे ने ते? एक बेटा। ये नाज़रीन समरीन का बेटा है। अच्छा, ते आंटी जी क्यों तुहाडी बेटी ते चोरी का इल्ज़ाम क्यों लाया उन्होंने? ये नहीं पता हुण, ते वो कहंदा सी मुसलमान हो जा। कौन कहंदा सी? शहजाद दी बेगम ओदी बेटी। अच्छा। इन्हें कहा मैं अपना मजहब क्यों छड्डा, अच्छा। मैनू अपना प्यारा, तानू अपना प्यारा, तेरी अच्छा। गां शादी भी नहीं हो सकनी। अच्छा, अगर तू मुसलमान ना हुई तो कि शादी नहीं हो सकनी? हाँ जी। अच्छा, मुसलमान हो जाएगी तो फिर शादी हो जाएगी? हाँ जी। अच्छा, फिर समरीन ने की किया? कहंदी मैं नहीं होना मुसलमान। इन्हें फिर अच्छा। काम छड्ड दिता। फिर उन्हां दी वालदा उन्हां दे घर साडे आ गए ते इनू फिर लै गए आण के। अच्छा। तू साडी धी आ, तू साडी भैन आ, तू साडे घर काम कर, कोई मसला नहीं। फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ? फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ नहीं पता। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਏ, ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੌਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਸੂਟ ਸੀ ਤੇ 2 ਸੇਬ ਸੀ ਤੇ ਮਰੂੰਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਰੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਹੁਣ ਸਮਰੀਨ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮੀਏ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਾਹ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੇਗਨਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦੀ ਦਵੋ। ਅੱਛਾ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਜੀ ਸਰ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਟੋਟਲ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਲੀਗ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਬੈਨ ਭਾਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਗਨਾਹ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਘਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕ ਕੇ, ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਦੀ नहीं गई। अच्छा, कहता कि बेटी ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। हाँ जी। नाज़रीन, इस केस में बहुत ही एक्सक्लूसिव जो अभी आज हम जब फैसलाबाद में आए हैं, जब घर ख़ानदान से तफ्तीश की है तो कुछ एक्सक्लूसिव जो मनाज़र हैं वो हमने कैप्चर किए हैं। वो लाइव नहीं दिखा सकते थे, ख़ानदान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, समरीन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। वो लाइव मनाज़र हमने सारे कैप्चर कर लिए हैं, वो इस वीडियो के बाद हम आपको दिखाएंगे। वो अदालत के लिए एक बड़े ज़बरदस्त एविडेंस हमने इधर से इकट्ठे किए हैं। माहिर कानून डॉक्टर शर्जील ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। FIR उनके हाथ में है, उनसे भी हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब FIR में कहाँ क्या उन्होंने जो है मेल-FID की है, किस बुनियाद पर उन्होंने FIR आपने पढ़ी है, FIR में कहाँ पर ये बददियानती साबित हो रही है? जी शुक्रिया सलीम भाई। सबसे पहले तो ये है कि ये जो बच्ची है जी, ये शहजाद नामी शख्स है, इसके घर में घरेलू मुलाजमा के तौर पर जॉब करती थी जी। और इसने इसको जो है वो फोर्स कन्वर्जन के लिए और सेक्सुअल ग्रेटिट्यूड के लिए इसको मजबूर किया जी। एंड अपॉन हर रिफ्यूज़ल दे गॉट रजिस्टर्ड दिस FIR। अब इस FIR के अगर हम दर्जात को पढ़ें तो उसके मुताबिक जो है
सिर्फ ये समरीन ही उसके घर में जॉब करती है जी। 381 जो है ये जो जुर्म है ये 5 मजीद अफराद पर भी लगा दिया गया है जो कि उसके घर में ना तो मुलाजिम है ना कभी उनका वहाँ पर आना जाना कोई ऐसा हुआ है। उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर दिया है, समरीन के बाप और भाई को भी जो है वो उसको भी 381 के तहत ही जो है वो चार्ज किया गया है जो कि ना तो वहाँ पर मुलाजिम है और ना ही वहाँ पर उनका आना जाना है जी। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये तकरीबन 20 दिन के बाद जो है 6.5 लाख की ये चोरी बता रहे हैं कि हमारे घर से हुई है और 20 दिन के बाद जो है ये इसकी ये FIR करवा रहा है ये शख्स। और उसके बाद तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो टोटल FIR बेस करती है ये उसकी सस्पिशन के ऊपर बेस करती है क्योंकि ये कहता है कि मुझे कभी यकीन है कि ये अफराद जो हैं यही मेरे चोर हैं। और उसके अलावा मज़ीद एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पुलिस से भी पहले इसने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में इनको मनाने की कोशिश की है। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और सस्पिशन की बेस के ऊपर इसने ये FIR दर्ज करवाई है। और उसके बाद एक जो है वो वीडियो जिसका ये जिक्र करता है उसमें ये कहता है कि मेरे घर से चूँकि 2 शॉपर चोरी हुए थे, एक में 6.5 लाख रुपया था और दूसरे में जो है वो 2 सूट थे। और वो मुल्ज़मान के बारे में ये मौक़िफ़ उसने इख्तियार किया है कि वकूए के 2 दिन बाद नामालूम 2 मुल्ज़मान शॉपर मेरे घर के बाहर फेंक भी गए हैं 2 सूट। तो जो मुल्ज़मान आपका 6.5 लाख रुपया संभाल सकते हैं वो 2 सूट भी संभाल सकते थे। ये मुकम्मल तौर पर झूठी FIR है। FIR वकूए के कितने दिनों बाद दर्ज हुई है? जी 20 दिन बाद हुई है। ये यहाँ पे मेलाफाइडी साबित हो रही है जी 20 दिन के बाद। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको मज़ीद भी मैंने अर्ज़ कर दी हैं। और दूसरी बात ये है कि प्री अरेस्ट पर ये हमारे जो एक्यूज पर्सन थे और दौराने तफ्तीश जो है ये बच्ची और इसका बाप जो है उसको वो इस वक्त पुलिस की इलीगल डिटेंशन में है और उनको बिल्कुल दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ब्रूटल टॉर्चर बाय द मेल पुलिस ऑफिशियल्स। और ये पुलिस की जो है ये जो है वो चीरा दस्तियाँ जो हैं इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इनसे इनका हिसाब भी लेंगे। और खुदा ने चाहा तो कौम देखेगी कि हम इस पोजीशन में हैं, इनसे इनके एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे। इस केस में सरासर गरीब ख़ानदान के साथ ज़्यादती हो रही है। आज हमारी एक मसीही बहन के साथ जो है इतना जुल्म किया गया है कि उसको मंजी लगाई गई है, कुर्सी लगाई गई है, उसको छित्तर मारे गए हैं थाने में और उसके साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। उसने समरीन ने मुझे बताया कि सिर्फ मेरे कपड़े उतारने वाले रह गए थे। तो अब ये कि पुलिस जो है वो ये मुतालबा कर रही है जहाँ से मर्ज़ी पैसे लेके आओ। रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए मैं आपको बताता चलूँ, आप आज टाइम और डेट नोट कर लें कि पुलिस जो अमजद मसीह है उसको लेके आई, रिटायर्ड सेंट्री वर्कर है, उसके घर में लेके आई है और उसकी चेक बुक लेके गए हैं। अब बैंक के ज़रिए उसकी पेंशन ली जाएगी, पेंशन के वो पैसे और समरीन की अभी वो घर आई है वॉशिंग मशीन और दूसरी चीज़ें बेचने के लिए, साथ पुलिस भी आई है सादा कपड़ों में। तो अब वो मशीन बेचेगी, 11-12 हज़ार रुपया जो वो देगी, शायद कोई 50-60 हज़ार रुपया उनको इस तरीके से वो दिया जाएगा। पुलिस उन पैसों की रिकवरी डालेगी और फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और उनको जेल भेज दिया जाएगा। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि सारे जुल्म का हम हिसाब लेंगे। मैं हाकिम वक्त से ये कहना चाहूँगा कि हमारी बेटियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, जबरी तब्दीली मज़हब के लिए उकसाया जाता है, इनकार करती हैं तो चोरी के झूठे पर्चे दर्ज किए जाते हैं। हमारी जो बहनें बेटियाँ हैं अभी हाफजाबाद में खेतों में मार मार कर उनको भगाया गया है, आंखों पे पट्टियाँ बांधकर उनके साथ जुल्म किया गया है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा मसीही बेटियों के साथ, बहनों के साथ, लड़कियों के साथ इसी तरह जुल्म होता रहेगा। तो चोरी उनसे की थी नहीं की तो फिर पैसे कादे पर रंडे मनाया उन्होंने सानू मार के नहीं मनाया उन्होंने मेनू मंजी लाती सी, कुर्सी लाती, मारिया पुलिस वाले ने? हाँ जी पुलिस वाले ने। मैं दही लागे खलोता सी। ताडे अब्बू ने भी मारा? हाँ जी अब्बू दही ने अपने सामने मरवाया था? हाँ जी। तो हुण मैं आया ना मैं थोड़ी देर तक मैं आया ना थोड़ी देर। वीडियो आपने देखी है, वो बार बार कह रही है कि मैंने चोरी नहीं की लेकिन मुझे तशद्दुद करके 3rd डिग्री लगा के जो है मनाया गया है। जिन पुलिस एहलकारों ने ये जुल्म किया है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सलीम भाई, थैंक यू। जैसा कि हम पहले भी आपको ये ब्रीफ कर चुके हैं कि ये एक FIR जो है वो अंडर सेक्शन 381 जो है समरीन के ख़िलाफ़ हुई थी, जिसमें
جو مطلب میلافائڈ انٹینشن کے تحت اس کے والد کو اور بھائی کو بھی نامزد کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت یہ جو ہمارے تینوں ایکیوزڈ پرسنز تھے، وکٹمز جو ہیں، یہ میں تو ان کو وکٹم کہوں گا، اب یہ ایکیوز نہیں رہے، کیونکہ جتنا ان کے پاس اوپر ظلم ہو چکا ہے یہ اب وکٹم ہے۔ لڑکی کا جو باپ ہے وہ ہیپاٹائٹس کا مریض بھی ہے، 60 سال اس کی عمر ہے۔ ہاں جی، تو اس میں یہ جو سمرین اور اس کے جو فادر ہیں، یہ پری اریسٹ بیل پر تھے، یہ عدالت کی پروٹیکشن میں تھے، اور پولیس نے جب یہ انویسٹیگیشن جوائن کرنے گئے ہیں اس وقت لیگلی ڈیٹین کر دیا ہے اور سبجیکٹڈ ٹو بروٹل ٹارچر۔ اس اثناء میں جو پولیس نے جو ہے وہ عدالت کی بھی توہین کی ہے، اور قانون اور انصاف کی جو ہیں وہ دھجیاں جو ہیں وہ انہوں نے بکھیر دی ہیں۔ اب ہم اس بات پر آئیں گے کہ سلیم صاحب یہ پولیس نے یہ سب کچھ کیا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پولیس نے ان کو حراست میں، غیر قانونی حراست میں رکھا ہے، تو اس کے پیچھے ان کے پس پردہ دو مقاصد تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ان پر بے پناہ تشدد کر کے ان سے کنفیشن کروانا، اور نمبر دو یہ ہے کہ ان سے ریکوری کروانا۔ لیکن وہ اس میں کامیاب پوری طریقے سے نہیں ہو سکے، لیکن اپنی انہوں نے جو ہے وہ رشوت کا بازار جتنا گرم کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ لیکن سب سے زیادہ خطرناک جو حرکت کی ہے وہ پولیس نے نالج میں تھا کہ ایز پر لا وین دا ایکیوز پرسن از آن پری اریسٹ بیل ہی کین ناٹ بی ایکسٹینڈیڈ آن بیل اف ہی از ناٹ پریزنٹ بیفور دا کورٹ، اور پولیس نے ان کو زبردستی حراست میں رکھ کر عدالت میں پیش ہونے کا موقع نہیں دیا، اور اسی کی بنا پر ان دونوں کی یعنی باپ بیٹی کی جو ہے وہ بیلز جو ہیں وہ ڈسمس ہوئی ہیں، اور یہ پولیس نے ان کے اوپر جو ہے شدید یعنی کہ ظلم کرتے ہوئے ان کو ان کے بیل کنفرمیشن کے رائٹ سے بھی جو ہے وہ محروم کر دیا ہے۔ اب ہم اس بات پر آئیں گے سلیم بھائی کہ یہ ہمارے ملک میں یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ پولیس اس ملک میں بے لگام ہو چکی ہے۔ دس کنٹری ہیز بین ٹرنڈ انٹو اے پولیس اسٹیٹ، اور یہ جو پولیس ہے یہ نہ عدالتوں کو مانتی ہے، نہ قانون کو مانتی ہے، اور نہ ہی کسی ضابطے اور ضابطہ اخلاق کو مانتی ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ جب کہیں جو ہے وہ کیس جو ہے when the accused person it is related to some minority class، تو اس وقت ان کا یہ جو بے لگامی ہے اور جو بے لا قانونیت ہے پولیس کی، یہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ان کو یہ پورا یقین ہے کہ اس ملک میں اقلیتوں کا نہ تو کوئی پرسان حال ہے، نہ ان سے کوئی باز پرس کرنے والا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ اس ویڈیو سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کافی مضبوط ایویڈنس موجود ہے، اور ونس دا ایکیوز پرسنس they are extended on bail, then afterwards we shall definitely proceed against the police authorities۔ ڈاکٹر صاحب کل اس کی ماں نے بتایا تھا، کیا وجہ تنازع تھا کہ لڑکی پر چوری کا جو الزام لگایا گیا اس کی کیا وجہ تھی؟ جی جو یہ موٹیو بیہائنڈ دس false FIR that is very much clear from the statement of the accused person, that is Samreen, who has told to her family that Shehzad, that is complainant in the FIR, Shehzad Sheikh, who is complainant in the present FIR, actually he wanted to get her converted, and he wanted to get married to her, and upon her refusal, it is only upon her refusal that this fake FIR has been registered against Samreen۔ میں آیا نا، میں تھوڑی دیر تک میں آیا نا تھوڑی دیر